السلام علیکم ناظرین، میں جاوید اقبال آپ تمام سامعین کا ناظرین کا آپ کے ہی یوٹیوب چینل شاہین کلاسز اردو میں تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کا یہ ویڈیو بی ایس سی بی کلاس 12 کے کہکشاں حصہ دوم سے تعلق رکھتا ہے۔ چلیے بلا تاخیر ہم شروع کرتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے آپ کو ڈپٹی نذیر احمد اور خاکہ نگاری کے بارے میں، فرحت اللہ بیگ بھی کے بارے میں بھی آپ کو پڑھا دیا تھا۔ آپ میرے چینل میں ان کو سرچ کر سکتے ہیں۔ آج ہم جو خاکہ ہے نذیر احمد کی کہانی وہ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ نذیر احمد کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ فرحت اللہ بیگ جو نذیر احمد کے خاص شاگرد ہیں، یہ انہوں نے ہی لکھا ہے۔ میں سے مراد کون ہے؟ فرحت اللہ بیگ۔ میں اور میاں دانی 11:30 بجے مدرسے سے آئے، کھانا وانا کھایا، سبق کا مطالعہ کیا، 1 بجے نکل کھڑے ہوئے۔ مکان کا پتہ پوچھتے پوچھاتے 1:30 میں 5 منٹ تھے کہ 1:30 بجنے میں 5 منٹ تھے کہ مولوی صاحب کے دروازے پر جا دھمکے۔ لکھنے کا انداز یہ خاکہ ہے۔ خاکہ میں مزاح بھی ہوتا ہے، طنز بھی ہوتا ہے اور ظرافت بھی ہوتی ہے، تو جا دھمکے اس طرح کے الفاظ ہیں۔ دروازے کی ایک چوکی پر میں اور دوسرے پر میاں دانی ٹک گئے، جا کر بیٹھ گئے۔ سامنے ہی کمرہ تھا، کھڑے ہو گئے۔ ٹک گئے مطلب جا کر کے وہاں پر جم گئے۔ بیچماری رسی ہاتھ میں لیے اونگ رہی تھی۔ یہ بیچماری ایک کوئی ان کی خادمہ ہوں گی، وہ کیا کر رہی تھی؟ ایک رسی ہاتھ میں لیے اونگ رہی تھی۔ کبھی کبھار رسی کو ایک آدھ جھٹکا دے دیتی تھی اور رسی سے پنکھا جھلا جاتا تھا، پنکھا چلایا جاتا تھا۔ کمرے کے اندر مولوی صاحب تھے، لیکن دروازہ بند تھا، اس لیے دکھائی نہ دیتے تھے۔ اب یہ خیال ہوا کہ مولوی صاحب کا ہی مکان ہے یا کسی دوسرے کا۔ یہ نشان جو ہے فجائیہ کا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اندر زنانہ تو نہیں ہے، یعنی کہ اس کو ایسا لگا، احساس ہوا کہ اندر لیڈیز کا گھر تو نہیں ہے، ہم یہاں بلا تکلف داخل ہو تو کیسے کیا ہوگا نہیں ہوگا، یہ سب ان کے خیال میں گمان میں آ رہے تھے۔ غرض اس شش و پنج میں تھے کہ مولوی صاحب کے کمرے کے گھنٹے نے ٹن سے 1:30 بجا دیا، کیونکہ ان کو ڈیڈ لائن ملی ہوئی تھی نذیر احمد کی طرف سے کہ آپ کو 1:30 بجے آنا ہے۔ تو ان کو ڈیڈ لائن جب مل گیا تھا تو جہاں 1:30 کا گھنٹہ بجا، کھٹ سے ہم دونوں اٹھے اور دبے پاؤں چوروں کی طرح اندر داخل ہوئے ان کے گھر میں۔ گھر میں سناٹا تھا۔ بیچماری نے سر بھی اٹھا کر نہ دیکھا کون جا رہا ہے۔ کمرے کا ایک دروازہ کھلا تھا، ان کے جو گھر کا دروازہ کیا تھا؟ کھلا تھا۔ ان میں گردن ڈال کر جھانکا۔ چونکہ روشنی سے اندھیرے میں آئے تھے، اس لیے کچھ دکھائی نہ دیا۔ اندر سے کسی نے ڈانٹ کر کہا، کون ہے؟ اس آواز کو پہچان کر ہم سنبھل گئے۔ ان کو لگ گیا کہ یہ ڈپٹی نذیر احمد ہے، مگر بیچماری اچھل پڑی۔ بے اختیار ان کے منہ سے گنبد کی آواز کی طرح نکلا، کون ہے؟ میں نے کہا، میں اور دانی۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا، او بیٹا اندر آؤ۔ مولوی صاحب نے فوراً پلنگ پر اٹھ بیٹھے اور تہبند کو سنبھالتے ہوئے نیچے اتر آئے۔ تہبند کہتے ہیں لنگی کو، ٹھیک ہے۔ ہمارے بہار میں اور بہت جگہ پہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تہبند بھی کہتے ہیں، یو پی سائڈ میں، اور یہاں ہمارے بہار میں اس کو لنگی کہتے ہیں۔ پوچھا، کیا پڑھتے ہو؟ ہم نے کتاب پیش کی۔ تھوڑی دیر تک الٹ پلٹ کر دیکھتے رہے، اس کے بعد کہا، بھائی ایک کتاب میرے لیے بھی لیتے آنا۔ ہم نے اپنی ایک کتاب ان کو دے دی، یعنی دو لوگ تھے، دونوں میں سے ایک میں سے کسی نے اپنی کتاب دے دی، دوسرے نے دونوں نے مل کر کام نکالا۔ اور کیونکہ آج کے زمانے کی طرح نہیں ہے کہ پیسے بہت ہوں، ایک کتاب سے ہی دونوں نے اپنا کام نکالا۔ کب پڑھایا اور کس طرح پڑھایا اس کا میں آئندہ ذکر کروں گا، کیسے پڑھایا اور کس انداز سے پڑھایا میں آگے بیان کروں گا۔ ہاں یہ ضرور ہے، جب پڑھ کر اٹھے
तो सब कुछ याद था मगर दिमाग पर किसी किस्म का भार ना था। यानी कि जब आते थे तो क्वेश्चंस बहुत सारे होते थे, लेकिन जब पढ़ के उठता था तो बस कोई भार कोई बोझ नहीं रहता था। बस ऐसा लगता था कि जहन बिल्कुल साफ़ हो गया, आज़ाद हो गया। खुशी खुशी घर आए, चलो अल्लाह दे और बंदा ले। अल्लाह दे और बंदा ले के माने क्या है यहाँ पर आपको अंडरलाइन किया हुआ है। अल्लाह दे एक कहावत है कि कोई देने वाला अगर देता हो तो, और लेने वाला जिसको मोहताज, वो मोहताज भी हो, उसके ज़रूरतमंद भी हो, वो बहुत आसानी से उसको ले ले। आगे देखते हैं। हमने भी कॉलेज में मौलवी साहब की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। तो पढ़ने में मज़ा आया तो इसको अपने कॉलेज जा कर के बोले वाह क्या पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत ये बहुत अच्छा लगा करके उनकी तारीफ़ की। यहाँ तक तो ये आवाज़ हिंदू कॉलेज के तलबा के कान तक पहुँच गई कि जो स्टूडेंट थे दूसरे कॉलेज के, वहाँ तक भी अपने कॉलेज से, ये क्योंकि ये लोग दिल्ली कॉलेज में पढ़ते थे और हिंदू कॉलेज बगल में था, तो हिंदू कॉलेज तक भी इनका जिक्र पहुँच गया कि अरबी के बहुत शानदार टीचर हैं डिप्टी नज़ीर अहमद, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वहाँ के एक तालिब इल्म मिस्टर रज़ा, क्या नाम था याद रखिएगा, ये नाम आएगा आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। मिस्टर रज़ा के दिल में गुदगुदी उठी, वो आए और हमसे मिले और कहा भाई मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ। मौलवी साहब इनकार तो ना करेंगे। हमने कहा चलो ज़रूर चलो, मौलवी साहब का क्या बिगड़ता है। 2 को ना पढ़ाया 3 को पढ़ाया, कितना अच्छा जुमला लिखा है, 2 को ना पढ़ाया 3 को पढ़ाया। उन्होंने कहा नहीं पहले मौलवी साहब से पूछ लो। हमने कहा यार चलो भी, अगर उन्होंने कुछ कहा तो हमारा ज़िम्मा, अगर कुछ डांटा डपटा तो हम खा लेंगे डांट, तुमको क्या दिक्कत है। वो राज़ी ना हुए और यही कहकर पहले पूछ लो, यानी कि बहुत शर्मिले थे, कहा पहले पूछ लेना चाहिए। इस अरसे में हमारी हिम्मत मौलवी साहब के सामने बहुत बढ़ गई थी। दूसरे दिन जाते ही रज़ा का जिक्र किया। उन्होंने कहा लेते क्यों ना आए। हमने कहा वो ज़रा शर्मीले हैं, बग़ैर इजाज़त आना नहीं चाहते। उन्होंने कहा क्या कहा, बहुत अच्छा जुमला है कि उन्होंने कहा कि तालिब इल्म शर्मीला हुआ और डूबा। ये बहुत, तालिब इल्म अगर शर्मा जाए और वो पूछने में हिचकिचाए तो क्या है, बहुत गम की बात है, उसके लिए बहुत दर्द की बात है, बहुत तकलीफ़ दे होगी फ्यूचर में। इसीलिए कभी शर्मीला नहीं होना चाहिए। अल हया व निस्फुल मिनल ईमान, ये कहना भी सही है कि हया शर्म जो है ईमान का एक आधा जुज़ है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इंसान उस्ताद के सामने बिल्कुल बोल्डनेस इतना दिखा दे, अपना बेबाकी और बदतमीज़ी दिखाना शुरू कर दे, ये भी बिल्कुल इसका मतलब नहीं है। उस्ताद से हया शर्म होना ज़रूरी है। खैर, लेकिन हद तक पढ़ने में बिल्कुल शर्म नहीं, लेकिन बाहर में होना चाहिए, शर्म लिहाज ज़रूरी है। बहरहाल आगे देखते हैं। खैर, कल ज़रूर साथ लाना, ज़रा उनका भी रंग देख लूँ। शाम को वापसी के वक्त जाते जाते फराश खाने में हमने रज़ा को मौलवी साहब का इजाज़तनामा पहुंचा दिया और कह दिया कि भाई पूरे 1:30 बजे पहुंच जाना, क्योंकि आपको इससे पहले बताया नहीं, असल हुआ क्या था कि डिप्टी नज़ीर अहमद, ये जो फ़रहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी हैं, इनको अरबी का ट्यूशन लेना था। और वजह ये थी कि जिस कॉलेज में पढ़ते थे वहाँ जो अरबी डिपार्टमेंट के जो प्रोफेसर थे वो हज को चले गए थे बीच कोर्स के, और इनका कोर्स कंप्लीट ना हो पाया था, जिसकी वजह से इनको कोचिंग की तलाश थी। तो किसी ने कहा कि डिप्टी नज़ीर अहमद एक बहुत शानदार बहुत अच्छे टीचर हैं, तो इन्होंने कहा कि चलते हैं, जाना चाहिए, उनसे पढ़ना चाहिए। तो उनसे पढ़ने जाते हैं, लेकिन डिप्टी नज़ीर अहमद उनको पढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो इस तरह का बाउंडेशन, इस तरह का शर्त रख देते हैं कि कोई भी बंदा इसको फुलफ़िल ना कर पाए। उसमें से शर्त ये थे कि आपको साल में एक भी छुट्टी न मिल पाएगी, चाहे रमज़ान हो या ईद हो या बकरीद, पढ़ने आना ही है तो ही मैं पढ़ा पाऊँगा। और शर्त ये थी कि आपको 1:30 बजे आना है, ना ज़्यादा ना कम, 1 मिनट भी इधर उधर हुआ तो कैंसिल पढ़ाना। इस तरह का शर्त था। इसलिए कहा उसको, मियाँ दानी को, मिस्टर रज़ा को, कि आप 1:30 बजे एक्चुअल एट टाइम आपको पहुँच जाना है वहाँ पर, वरना अंदर घुसने ना मिलेगा। दूसरे दिन जो हम पहुँचे तो वो पहले ही दरवाजे पर ढई दिए बैठे थे, मैंने पहुँच गए थे जा कर के। ठीक 1:30 बजे हम अंदर दाखिल हुए।
मौलवी साहब को हमको देखते ही पलंग पर उठ बैठे और कहा, लाओ किताब। हमने किताब ताक पर से उतार कर उनके हाथ में दे दी। वो किताब लेते 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 नीचे आ बैठे और कहा, अच्छा ये है मियाँ रज़ा, ये देखो, ये है ये फुजाइया। इसको कौन सा निशान कहते हैं? एक्सक्लामेटरी सिंबल्स इसको इंग्लिश में कहते हैं, और इसको उर्दू में फुजाइया कहते हैं। तो यहाँ पर कहा, ये है रज़ा। बेचारे रज़ा ने गर्दन झुकाकर जी हाँ कहा। क्या कहा? जी हाँ। मौलवी साहब ने कहा, अच्छा भाई शुरू करो। अब क्या था, हमारे पढ़ने का यह तरीक़ा था कि एक रोज़ मैं पढ़ता था और दूसरे रोज़ मियाँ दानी। तो इसको पढ़ने का स्टाइल क्या था इन लोगों का? एक रोज़ मियाँ दानी पढ़ते थे और एक रोज़ फ़रतुल्लाह बैग पढ़ते थे। अब इसको हमारी शरारत कहो या महज इत्तेफाक, हम दोनों चुपके बैठे रहे। पढ़ाई नहीं इन दोनों ने। इन दोनों को पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ाई किसी ने नहीं। जब इस खामोशी ने तूल खींचा तो मौलवी साहब ने कहा, अरे भाई आज तुम पढ़ते क्यों नहीं? क्या मुंह में घनघनिया भर के आए हो? अच्छा मियाँ रज़ा, तुम ही शुरू करो। ये दोनों को पढ़ना चाहिए था। अब बारी किसकी आ गई? मिस्टर रज़ा की आ गई। रज़ा ने सफ़ा पूछा, अब पढ़ना शुरू किया। अगर एराब की गलतियाँ मुझसे कम की तो नज़्म को नसर मियाँ दानी से ज़्यादा बना दिया। क्या था कि ये जो शागिर्द थे ये लोग पढ़ने में थोड़े से कच्चे थे। मियाँ दानी जो थे ये नज़्म को नसर कर देते थे, और ये हमारे फ़रतुल्लाह बैग जो हैं, जो कि साहिब मुसन्निफ़ भी हैं, और इनकी क्या गलती थी, ये सर्फ़ और नहव में बहुत कमज़ोर थे। एराब की गलती इनकी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो एराब में तो फ़रहतुल्लाह बैग से आगे निकल गए गलती में, और नज़्म को नसर करने में मियाँ दानी से आगे चले गए। ये शेर तो मौलवी साहब चुपके सुनते रहे। आधा शेर सुनते रहे, चलो भाई बर्दाश्त कर लेते हैं गलती। उसके बाद कहने लगे, वाह भाई वाह, हमको भी अजीब नमूने के शागिर्द मिले हैं मियाँ रज़ा। अब देखो कितना खूबसूरत जुमला कहा जा रहा है, मियाँ रज़ा अगर हम तुमको एक नेक सलाह दें तो मानोगे? रज़ा ने निहायत शर्मीला आवाज़ में गर्दन झुका कर कहा, बसर व चश्म। क्या मतलब? आँख और सर झुका करके आपकी बात मानेंगे हम। मौलवी साहब ने कहा, देखो अपने वादे से फिर ना जाना। उन्होंने कहा, जी नहीं। मौलवी साहब ने कहा, अच्छा तो मेरी सलाह ये है, कल से तुम मेरे यहाँ न आना। क्या कहा? मेरे यहाँ पढ़ने ना आना। ये सुनकर वो बेचारे कुछ पसमुर्दा हो गए, यानी कि बहुत ज़्यादा मायूस हो गए। मौलवी साहब ने कहा, भाई रज़ा, मैं ये नहीं कहता कि मेरे यहाँ आना ही छोड़ दो, मैं तुमको भी ज़रूर पढ़ाऊँगा, मगर 10-15 रोज़ शाम के वक्त काली जान के यहाँ तालीम में हुआ है। काली जान कोई थी जो गाना बजाने का काम करती थी, नज़्म वगैरह पढ़ती थी। अपने इतने दिनों के आने जाने में तुम्हारे कानों को नज़्म और नसर में फ़र्क मालूम होने लगेगा, क्योंकि ये नज़्म को क्या कर देते थे? नसर कर देते थे। इसलिए कहा कि अगर तुम काली जान के यहाँ जाओगे तो हो सकता है वहाँ तुमको नज़्म और नसर में फ़र्क करना आ जाएगा। इतने दिनों के आने जाने में तुम्हारे कानों को नज़्म और नसर में फ़र्क मालूम होने लगेगा। भाई मुझसे तो शेरों के गले पर छुरी फेरते देखा नहीं जाता। क्या कहा? मुझसे तो शेरों के गले में छुरी फेरता हुआ देखा ना जाता। बेचारे मुतनब्बी, ये शायर हैं, याद रखना, याद पूछा जा सकता है। ये हमने जितना भी टिक लगा हुआ है ये सारा इम्पॉर्टेंट है। कहा कि बेचारे मुतनब्बी को क्या खबर थी कि बताशों की गली में नज़ीर अहमद के कमरे में उनके अशार मौलवी रज़ा साहब इस तरह हलाल करेंगे, है ना। बेचारे तो यहाँ पर डिप्टी नज़ीर अहमद के घर का पता भी मालूम हो गया। कौन सा? बताशों की गली। बेचारे रज़ा के सर पर घड़ों पानी फिर गया। खुदा खुदा करके सबक ख़त्म हुआ और हम सब रुखसत हुए। क्या हुए? वहाँ से रुखसत हुए। रास्ते में हमने उनको बहुत मनाया, बहुत मज़ा लिया उनका। भाई क्या
होते हैं ना लोग, दोस्त आपस में खूब मस्ती करते हैं। दूसरे रोज़ से वो ऐसे गायब हुए कि फिर शक्ल ना दिखाई। तो शर्मीले थे बेचारे, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गए, तो दूसरे दिन से वो बिल्कुल अपना शक्ल भी नहीं दिखाए। मिस्टर, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं फ़रतुल्लाह बैग कि मिस्टर रज़ा की हया का हाल तो तुमने सुना, ठीक है, सुन चुके। अब हमारी बेहयाई की दास्तान सुनिए। मेरे मेरी सरफ नौ बहुत कमज़ोर थी। क्या थी? फरतुल्ला बैग की क्या कमज़ोर थी? सरफ नौ। और वो कमज़ोर क्यों ना होती, शुरू किए हुए कई दिन हुए थे। एराब में हमेशा गलती करता था। और इनकी क्या गलती सबसे ज़्यादा? एराब की गलती थी। नज़र को संभालते संभालते कि संभाल लेता था, यानी कि नसर को संभाल लेता था, मगर नज़्म में दिक्कत पड़ती थी। यानी नसर किसी तरह मैं पढ़ लेता था, लेकिन नज़्म जो शेर होता है उसको पढ़ने में मुझे बहुत दुश्वारी होती थी। शेर खुद भी कहता था, दूसरों के हज़ारों शेर याद थे, इसलिए शेर को तख्ती से गिरने ना देता था। यानी कि बहुत सारे उनको हज़ारों अरबी के शेर याद थे। अब क्या था कि एक वज़न मिल जाता था शेर का, इसलिए कोई भी शेर होता था तो उसको किसी तरह वो संभाल लेते थे। मियाँ दानी की हालत इसके बिल्कुल बरअक्स थी। बरअक्स थी मतलब उल्टी थी। वो एराब की गलती ना करते थे, मगर शेर को नसर कर देते थे। सकते क्या थे, झटके पड़ जाते थे। मौलवी साहब हम दोनों को पढ़ाने से बहुत क्या है जिस बिज हो जाते थे, यानी परेशान हो जाते थे कि ऐसे शागिर्द मिले हैं कि अल्लाह खैर करे। अब क्या होता है, एक दिन एक दिन ये हुआ कि मेरे पढ़ने की बारी थी। मैंने शेर पढ़ा, मालूम नहीं कहाँ के एराब कहाँ लगा दिया। अब क्या गलती एक दिन होती है, एराब की गलती या फरतुल्ला बैग ने ऐसी कही कि मौलवी साहब ने कहा, क्या पढ़ा? मैं समझा कि एराब में कहीं गलती ज़रूर हुई। तमाम एराब बदल कर शेर मौजू कर दिया। एराब की फिर ज़बर ज़ेर को इधर उधर करके बढ़ दिया। उन्होंने फिर बड़े ज़ोर से की, हमने फिर एराब बदल दिए। यहाँ हूँ कहा, एराब बदला। इससे उसको गुस्सा आ गया। कहा, दानी तुम पढ़ो। उन्होंने शेर का गला ही घोंट दिया। खासे भले चंगे शेर को नसर बना दिया। अब क्या था, मौलवी साहब का पारा 110 डिग्री पर चढ़ गया। ठीक है, किताब किताब उठाकर जो फेंकी तो कमरे से गुजर दालान में होती हुई सहन में पहुंची और निहायत गुस्सैली आवाज़ में कहा, निकल जाओ, अभी मेरे घर से निकल जाओ। क्या कहा? निकल जाओ, मेरे घर से निकल जाओ। ना तुम मुझसे पढ़ने के काबिल हो, ना मैं तुम्हारे पढ़ाने के लायक। दानी ने मेरी तरफ देखा, मैंने दानी की तरफ देखा। उन्होंने आंखों ही आंखों में कहा, चलो। मैंने आंखों में जवाब दिया, हरगिज़ नहीं। उन्होंने उठने का इरादा किया, मैंने उनका जानू दबा दिया। मौलवी साहब की यह हालत थी कि शेर की तरह बफर रहे थे, मैंने गुस्से में थे बिल्कुल, और उस वक्त निकल जाना ही ज़्यादा बेहतर था। इसलिए मेरा दानी कह रहे थे कि निकल ही चलते हैं, लेकिन इनका कहना था ना, हरगिज़ नहीं। आखिर जब देखा कि लौंडे टस से मस नहीं होते तो कहने लगे, अब जाते क्यों नहीं? मैंने कहा, मौलवी साहब, जब तक कोई धक्के देकर ना निकालेगा उस वक्त तक तो हम जाते नहीं। जाएंगे तो भी फिर आ जाएंगे। मौलवी साहब ने जो ये बेहयाई देखी तो ज़रा नरम हुए, कहने लगे, अच्छा नहीं जाते हो तो ना जाओ, मगर एक एक हरफ तुमको ना पढ़ाऊँगा। बोले, अच्छा इतनी बदमाशी तुम्हारी, जाओ, नहीं जाओगे तो नहीं जाओ, मैं पढ़ाऊँगा ही नहीं। मैंने कहा, ना पढ़ाइए, मगर बग़ैर पढ़े हम यहाँ से ना टलेंगे, ना टले हैं ना टलेंगे। कहने लगे, बेटा इस वक्त मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, अब चले जाओ, कल आ जाना। दानी ने सच समझा। मैं समझा कि इस वक्त उठे, मौलवी साहब हाथ से गए। मियाँ दानी साहब समझ गए कि नज़ीर अहमद का पढ़ाने डिप्टी नज़ीर अहमद साहब का पढ़ाने का मन नहीं है। और मियाँ दानी समझे कि हो सकता है सर कह रहे हैं कि अभी चले जाओ, कल आना। अब उस्ताद का हुक्म है कि मानना तो पड़ेगा ही। ठीक है, ये होने लगा था। दानी उठ खड़े हुए, मैंने पकड़कर उनको बैठा लिया। मौलवी साहब ये तमाशा देखते रहे। मैंने कहा, मौलवी साहब
पढ़ाएंगे तो आज ही पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो आज ही पढ़ेंगे, और आज पढ़ेंगे तो इसी वक्त पढ़ेंगे। पढ़ना है तो पढ़ाइए, वरना हम यहाँ से ना जाना है ना जाएंगे। आखिरकार हम जीते, मौलवी साहब हारे कहने लगे। खुदा महफूज रखे तुम जैसे शागिर्दों को भी, किसी को ना मिले। शागिर्द क्या हो, उस्ताद के उस्ताद हो गए, उस्ताद के उस्ताद हो गए। ठीक है, अच्छा भाई मैं हारा, अच्छा खुदा के लिए किताब उठा लाओ और सबक पढ़कर मेरा पिंड छोड़ो। डिप्टी नज़ीर क्या कहते हैं, खुदा के लिए किताब उठा लाओ और सबक पढ़ के मेरा पिंड छोड़ो। देखिए कौन सा दिन होता है कि मेरा तुमसे छुटकारा हो। मैं जाकर सहन में से किताब उठा लाया, और मौली साहब जैसे थे वैसे के वैसे हो गए, नहीं जिस तरह से नॉर्मल थे नॉर्मल हो गए। कहा करते थे कि उस दिन तुम चले जाते तो मेरे घर में घुसना नसीब ना होता। वो समझ गए थे ये फरदुल्ला बैग, तो वो भी कह रहे थे नज़ीर अहमद कि अगर उस दिन चले जाते तो मेरे घर घुसना नसीब ना होता। मैं तुम्हारे शौक़ को आज़माता था, ठीक है, मगर तुमने मुझे ही आज़मा डाला। खुदा ऐसे शागिर्द सबको नसीब करे। ये भी हयाई नहीं मियाँ, ये शौक़ है इल्म का। ये किसका शौक़ है? इल्म का शौक़ है। जिसको चस्का होता है वो बुरी भली सभी कुछ सुनता है। उसके बाद क्या बोला? बदशौक़ निकलते हैं और शौकीन उस्ताद को दबा लेते हैं, और बदशौक़ भाग निकलते हैं। क्या होते हैं? बदशौक़ जो हैं, जिसका वहाँ शौक़ नहीं पढ़ने का, वो वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जो शौकीन होते हैं वो क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं कैसे भी तरह से। चलिए, ये तो हो गया आपका डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी। ये देखिए यहाँ पर मुतनब्बी का दिया हुआ है, तो ये मुतनब्बी क्या है? एक अरबी का एक शायर है ये, ठीक है। और उसके बाद आपने पढ़ा, ये ख़ुलासा होता है एक तरह से, तो आपको इसको पढ़ना ज़रूरी है। तो इसको मैं भी आपको पढ़ा देता हूँ, बहुत मुख्तसर सा है। आपने पढ़ा, नज़ीर अहमद की कहानी मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग ने लिखा हुआ एक खाका है। उर्दू खाका निगारी का बाकायदा आगाज़ फ़रतुल्लाह बैग से हुआ। और ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि खाका निगारी का आगाज़ किसने किया? तो फ़रतुल्लाह बैग ने कहा। उन्होंने नज़ीर अहमद का खाका लिखकर उर्दू में खाका निगारी की बुनियाद डाली। पहला उर्दू का खाका भी क्या है? तो डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी। खाका नसरी अदब की एक दिलकश सिन्फ है। इसका आर्ट गज़ल अफसाने की आर्ट से बहुत मुशाबहत रखता है। खाका न सीरत निगार है न सवान उम्री। ये किस दिल आवेज़ शख्सियत की धुंधली सी तस्वीर है। इसमें न उसकी ज़िंदगी की अहम वाक़यात की गुंजाइश है, न ख़ास तारीख़ी और न ज़्यादा तफसील की। इसमें क्या है? खाका निगार में बहुत ज़्यादा तफसील से ये बात नहीं की जाती, किसी की पूरी ज़िंदगी की अक्कासी भी नहीं की जाती है। मुसन्निफ़ ने किसी शख्स में कुछ काबिल ज़िक्र खसूसियत देखी हो और उन्हें दिलचस्प अंदाज से बयान कर दिया, तो यही खाका है। तो खाका किसे कहते हैं? यही आपका इसी में लिखा है। खाका किसे कहते हैं? किसी के अंदर कोई खूबी देखी, जैसे डिप्टी नज़ीर अहमद के अंदर वक्त की पाबंदी, इसमें वक्त की पाबंदी भी दिखाया गया है कि 1:30 बजे कहा गया था आने को। तो वक्त की डिप्टी नज़ीर अहमद बड़े वक्त के पाबंद थे, एक खूबी थी। तो इस खूबी को इन्होंने खाके में तब्दील कर दिया। आगे देखते हैं। फ़रतुल्लाह बैग डिप्टी नज़ीर अहमद के शागिर्द थे। फ़रतुल्लाह बैग कौन थे? शागिर्द थे। और खाके में फ़रतुल्लाह बैग ने नज़ीर अहमद से तालीम हासिल करने के अहवाल बयान किए हैं। किस तरह फ़रतुल्लाह बैग नज़ीर अहमद के घर जाकर तालीम हासिल करते हैं। उससे एराब की गलतियाँ हुआ करती थीं। सर्फ़ नौ कमज़ोर थी। किनकी? फ़रतुल्लाह बैग की सर्फ़ नौ कमज़ोर थी। नस्ल को तो संभाल लेते थे, मगर नस्ल में दिक्कत पड़ती थी। नज़ीर अहमद बार बार समझाते समझाते परेशान होकर फ़रतुल्लाह बैग को तालीम देने से इनकार कर देते हैं। लेकिन फ़रतुल्लाह बैग टस से मस नहीं होते और डटे रहते हैं। और उन्हीं से तालीम हासिल करेंगे।
اسے آپ بے حیائی کہیں یا علم کا شوق، لیکن جس کے دل میں پڑھنے کا شوق ہوگا وہ اپنے استاد کے لاکھ ڈانٹنے پر بھی اس کے ساتھ رہے گا، استاد کی بری بھلی دونوں باتوں کو سنے گا، سمجھے گا اور ان کی نصیحت مانے گا۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہے لاسٹ میں دیکھیں کیا لکھا ہے۔ فرحت اللہ بیگ نے اپنے استاد اپنے نذیر احمد سے بہت کچھ سیکھا، اس سے متاثر ہوئے، ان کی خصوصیات کا بچشم خود دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، اپنے استاد کا خاکہ لکھ کر اردو میں خاکہ نگاری میں ایسی مستحکم بنیاد ڈالی کہ اردو میں اس صنف کی سینکڑوں قدرداں پیدا ہو گئے کہ ایک صنف کو ایجاد کیا، اور ایسا ایجاد کیا جو ایجاد کرنے میں کیا ہوتا ہے، بہت زیادہ خصوصیت نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگوں نے جیسے کمپیوٹر ایجاد کیا تھا، بڑے بڑے کمپیوٹر ہوتے تھے، آج کل دیکھیے منی کمپیوٹر ہو گیا۔ ابھی کوئی پہلے فرسٹ ٹائم ہی اگر کوئی منی کمپیوٹر بنا لیتا ہاتھ میں لوگ گھومتے لے کر کے تو یہ بات الگ ہوتی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ فرسٹ ٹائم لکھا اور ایسا لکھا کہ اس طرح کا خاکہ مشکل سے ہی کہیں دکھتا ہے نا۔ تو یہ ان کی فرحت اللہ بیگ کی ایک بہت زبردست خصوصیت تھی۔ آخر میں آپ سے کہوں گا کہ میں نے آپ کے لیے آبجیکٹیو نوٹس تیار میں نے کی ہے، اور جن حضرات کو یہ نوٹس چاہیے ہوں وہ میرے نمبر پر آپ پے ٹی ایم یا پے فون گوگل پے سے 300 پے کریں، میں سارا نوٹس میرے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے، بہت محنت لگی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ لے لیں گے۔ نمبر ہے 9534378817۔ اوکے، ٹھیک ہے، محنت کیجیے، آپ کا فروری میں ایگزام میں بھی ہو جائے، کرونا اگر نہ آئے تو۔ ٹھیک ہے، السلام۔